Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome once again to your online portal Biology at your fingers on the behalf of Subrat Singh Children Academy Jaunpur, and I am Ajay Prakash Tiwari, your bio teacher, and today we are going to start your chapter number 3. And as you know, at present your offline classes are not running, that's why we are again here online for the completion of your board syllabus. So here we will complete all the 16 chapters, starting with the chapter number 1, that is what reproduction in organism, and the last chapter number 16, that is environmental issues. So before that, in the sequence of that, we can say that today we are going to start your chapter number 3, that is human reproduction, because chapter number 2 will be taken by the Sanjay sir, and we are going to teach you chapter number 3, and after completion of this chapter we will start with chapter number 4. So as you know, human reproduction chapter number 3 is the part of your unit number 6. We can say that is what reproduction, and in this reproduction unit there are total 4 chapters. Chapter number 1, reproduction in organism. Chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Chapter number 3, human reproduction, and chapter number 4, reproductive health. And out of these 4 chapters, as per CBSE, you will get 14 marks or 14 mark question from these 4 chapters. So this unit is very important and very simple, and you will going to understand all the concept in very easiest manner. So don't worry, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी बेटा. बोर्ड के हिसाब से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा इन चारों चैप्टर से, तो उसमें से हम चैप्टर नंबर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट कर रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग, एज यू नो, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द introduction of the chapter, and after introduction of the chapter we will study about male reproductive system, and after this male reproductive system we will also study about female reproductive system. And when we will study about male and female reproductive system, next event will be what? Gametogenesis. And in gametogenesis we will study about the spermatogenesis and oogenesis in the male and females respectively. Then after there will be fertilization. After gametogenesis there will be fertilization, but as per your NCERT, after gametogenesis there is another event that is known as what? Menstrual cycle is given. So we will proceed as per the NCERT. First we will take the introduction, then male reproductive system, female reproductive system, then gametogenesis, then after with menstrual cycle, and later on we will study about the fertilization. And after fertilization you will study about pregnancy and embryonic development, and in the last we will study about parturition and lactation. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, there are total 7 events. We will study one by one in sequence. So in introduction, as you know, we are going to take the introduction of the human being and how reproduction in human being taken place. So let's quickly recap which topic is important, and as per the last 10-year questions from all these chapters, what are the certain topics, those are very we can say that red hot topics for your board examination. So इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो जानना आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बेटा. तो सबसे पहला जो आपका है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनता है और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट बेस्ड ऑन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेबलिंग और इट कैन बी गिवन एज वी कैन से दैट ड्राइंग. सो ये तो आपको या तो बनाने के लिए दिया जाएगा या आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ABCD करके आपको मिसिंग करेगा और फिर आप उसको लेबल करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सीबीएसई का कोई भी एक ऐसा ईयर नहीं रहा है जब उसने गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन ना पूछा हो. गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड व्हाट्स इट्स हार्मोनल कंट्रोल. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है. इसी तरह से oogenesis क्या है और इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसा है. तो
इसकी एकदम गारंटी है बेटा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है. फर्टिलाइजेशन इज नॉट मच सिग्निफिकेंट एंड देन आफ्टर देयर विल बी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. Here we will study about the implantation, and after implantation, as you know, there will be embryonic development period. That period will be known as gestation period, and that is nearly 9 months in the case of human females. Okay, so we have studied here fertilization. After fertilization, we can also add one word that is known as implantation. Implantation. We can add here another term, that is what? Implantation. Implantation means that attachment of the blastocyst. We will consider this definition later on. Attachment of the blastocyst to the endometrial lining of the uterus. We are going to explain all these topics without any problem. Okay, so now this last topic is very important here. That is what? Parturition and lactation. So these are the basic terms, those are given in our NCERT, and here we are going to start with the introduction of the chapter here, and then we will consider male reproductive system. Okay, so let's start the introductory portion, and as you know, in introduction we are going to consider some very simple points, so don't to be panic. पहला टर्म बेटा आपको यहाँ से जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा? We all are unisexual. Okay, we all are unisexual. It means that a particular individual may have single type of the sex organs. Okay, unisexual means that we can say that we show sexual dimorphism. It means that from the outside we can easily differentiate male and female on the basis of their characteristics. Okay, and these characteristics differ in male and female due to presence of different kind of sex organ in their body. यानी मेल और फीमेल बाहर से देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स. क्यों? क्योंकि उनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो यूनिसेक्सुअलिटी शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेटा डायमॉर्फिज्म आ जाती है. वी ऑल आर विविपारिस. As you know, animals can be categorized into two categories. One, those lay egg, oviparous, and those give birth to their child, those are viviparous. यानी दो तरह के एनिमल्स हैं. एक क्या होते हैं? एग लेइंग होते हैं बेटा. दूसरे क्या होते हैं? जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. तो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी किस में आती है? विविपारस में आती है. हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी हम लोगों में एकमात्र मोड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वी कैन से दैट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें होता क्या है? दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकमात्र ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जो होता है और जिसमें होता क्या है? गैमीट बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है. इसी को हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं इन्वॉल्व द formation and fusion of haploid sex cell, and name of those haploid sex cells are what? Gametes. And these gametes are formed by the meiosis cell division. Which cell division? Meiosis cell division, that is also known as reductional cell division, because we all are we can say that diploid organism. यहाँ हम कह सकते हैं हमारी जो मियोसाइट होती है, सेक्स सेल होती है, वो डिप्लॉयड होती है और उस डिप्लॉयड सेक्स सेल से हैप्लॉयड गैमीट बनता है, और जो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? मियोसिस होगा. दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट मियोसिस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंटरलिंक्ड. मियोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं. क्यों? या हम कह सकते हैं मियोसिस और गैमीट का फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं. क्यों? ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, व्हाई मियोसिस एंड गैमीटोजेनेसिस आर इंटरलिंक्ड. बिकॉज as you know, by the process of meiosis there will be formation of the haploid gametes, and meiosis will always takes place in the sex cells, or we can say that germ cells. That's why both are interlinked. And as you know, here there is what? Internal fertilization in the case of ह्यूमन बीइंग. यानी बेटा हम लोगों में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है. मींस दैट टेकन प्लेस इनसाइड द बॉडी. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स, देन यू कैन इजीली कॉल इट
what fallopian tube or that is also known as oviduct. We will discuss in the case of female reproductive system. या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइट है फर्टिलाइजेशन की वो क्या है, तो आप सिंपली बताओगे fallopian tube. और fallopian tube में भी बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, आप सभी को मालूम है कौन कौन से होते हैं. उसमें आपका एम्पुला है बेटा, इस्थमस है, इनफंडिबुलम है. तो उसमें से एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके बेटा, अब यहां से हम देखेंगे दो ज्यादा सर्टेन इवेंट्स और टर्म्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टर्म्स हैं और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है. तो आपको मालूम होगा, हमने पहले भी बताया, पहला जो टर्म आपको जानना जरूरी है दैट इज व्हाट, गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस एंड इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम. कभी भी बायो में अगर जेनेसिस वर्ड लगा हुआ है तो उसका मतलब बनेगा, और गैमीटो लगा है मतलब गैमीट. यहां पे क्या बनेगा, गैमीट बनेगा. सो दिस इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ formation of gamete. Process of formation of gamete. And as you know, in the case of male it will be what, spermatogenesis. Spermatogenesis. What is spermatogenesis? Here another term, genesis मतलब बनेगा कुछ, spermato लगा हुआ मतलब sperm बनेगा. यानी spermatogenesis is a process of production of sperm or formation of sperm that will taken place in the testis. We will discuss it later on. Next there will be what, oogenesis. It is clear from its name, ovum and genesis मतलब बनना. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, production of egg, or we can write it ovum, and it will be done by the ovary. But remember, in human being there are 2 testes and both testes together form sperm. यानी दोनों टेस्टिस हमेशा क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते रहते हैं, और 1 सेकंड में दोनों टेस्टिस मिलकर नियरली 28,000 स्पर्म बनाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें ओवरी में, तो ओवरीज भी क्या होती हैं, 2 होती हैं. कहाँ, फीमेल्स में. लेकिन वो साइमल्टेनियसली ओवम या एग को प्रोड्यूस करती है. मतलब अगर एक मंथ में राइट ओवरी ने एग को प्रोड्यूस किया, तो दूसरे मंथ में लेफ्ट ओवरी क्या करेगी, एग को प्रोड्यूस करेगी. इट मीन्स दैट अगर हम देखें एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल 12 एग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 6 बनेंगे लेफ्ट ओवरी से और 6 बनेंगे राइट ओवरी से. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो ये तो बेटा इवेंट नंबर 1 हुआ, जिसको हम और आपने मिलकर क्या कहा, गैमेटोजेनेसिस. अब गैमीट अगर बन गए हैं तो उसका दूसरा स्टेप होता है उनका ट्रांसफर. तो हम लोगों में जो बेटा दूसरा स्टेप है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सीमेन. और इस सीमेन में क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है. ध्यान ये दीजिएगा कि सीमेन और स्पर्म दोनों अलग अलग टर्म है. सीमेन एक ऐसा फ्लूइड है या एक ऐसा लिक्विड पोर्शन है जिसमें आपकी जो ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, हम आपको लेटर ऑन बताएंगे जब पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा. आपकी बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमेनल वेसिकल्स होती हैं. तो इनका जो सिक्रीशन होता है जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो वो सीमेन कहलाता है. ठीक. लेकिन अगर हम कभी भी मेल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट में हम किसको यूज करेंगे, केवल स्पर्म को यूज करेंगे. लेकिन स्पर्म चूंकि उसको मोटेलिटी प्रोवाइड करना है, उसको फ्लूइडिटी देना है, तो फ्लूइडिटी या मोटेलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, बाकी जो एक्सेसरी ग्लैंड है उनके सिक्रेशन की वजह से होता है. तो जब सिक्रेशन मिक्स हो जाते हैं और उसमें स्पर्म भी है तो वो सीमेन हुआ. और बाकी अगर हम अकेले मेल गैमेट की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो आपका रहेगा स्पर्म. ओके बेटा, तो दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया कि इंसेमिनेशन क्या है. ठीक है. अब अगर आपने गैमेट का ट्रांसफर कर लिया है, मेल और फीमेल गैमेट बन गया, उसके बाद मेल गैमेट का ट्रांसफर हो गया कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, तो फिर अगला स्टेप अब आपका होगा फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, fertilization. You can use Z and S both while writing the fertilization. Fertilization बेटा क्या है, this is what, fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्योंकि फ्यूजन किसका किसका होगा, स्पर्म और ओवम का होगा. फॉर्मिंग द डिप्लॉयड जाइगोट. फॉर्मिंग द डिप्लॉयड जाइगोट यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद क्या बन गया,
जाइगोट बन गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहले नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता था बेटा, लेकिन अब तो आउटडेटेड हो चुका है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फैलोपियन ट्यूब, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। और इसमें कहाँ? एम्पुला रीजन में। एम्पुला रीजन क्या होता है हम आपको बताएंगे जब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो अभी तक हमने कितने इवेंट्स देख लिए बेटा? इवेंट नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस था, इवेंट नंबर 2 हमारा कौन सा था? इंसेमिनेशन, और इवेंट नंबर 3 हमारा क्या था? फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो चौथे स्टेप में अब होने वाला है इम्प्लांटेशन। ठीक है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मीन्स दैट attachment of blastocyst to यूटेराइन वॉल, और वो यूटेराइन वॉल कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम होगी। एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है। सो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है और एंडोमेट्रियम क्या होता है, अब आपके लिए ये जानना जरूरी है। सो पहले तो ये जानिए कि इम्प्लांटेशन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, वो जाता है और इनर मोस्ट जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यूट्रस में, उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उससे जाके वो अटैच हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में ब्लास्टोसिस्ट है क्या? ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है जाइगोट के डेवलपमेंट से। जब जाइगोट बनेगा उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, सेल्स की संख्या बढ़ेगी। देयर विल बी 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32 and so on. So when there will be formation of more than 32 cells, out of these cells smaller and larger cells will arrange towards the upper and lower portion, and after arranging towards the opposite poles or opposite ends there will be formation of a cavity, and that cavity will be known as blastocele. ठीक है, तो होगा क्या बेटा? ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब जाइगोट में लगातार डिवीजन की वजह से सेल्स की संख्या बढ़ती है, और उन सेल्स की संख्या बढ़ने की वजह से जो सेल्स हैं उनका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है, और मूवमेंट होने की वजह से एक कैविटी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज कहते हैं। तो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है जब हम पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे किसका? फर्टिलाइजेशन का। तो अभी तो हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में इम्प्लांटेशन में इतना ही आपको याद रखना है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और अगर आप ब्लास्टोसिस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो सीधा सीधा लिख दीजिए अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग जाइगोट टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है बेटा, तो ये इम्प्लांटेशन हो गया। अब 4 इवेंट हमने देख लिए। बोर्ड पे बेटा हमें कहीं स्पेस नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो चौथे के बाद 5वां इवेंट आपको मैं यहाँ से लिख के दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इवेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस वन इज द गैमेटोजेनेसिस, इवेंट नंबर 1, एंड देन आफ्टर दिस इज इवेंट नंबर 2, दिस इज इवेंट नंबर 3, दिस इज इवेंट नंबर 4, और इधर तो मैं 5वां लिखने ही जा रहा हूँ। तो अगर आपने इम्प्लांटेशन कर लिया है तो इम्प्लांटेशन करने के बाद बेटा क्या होगा? देयर विल बी प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या होता है? प्लासेंटेशन मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग बेबी को। तो प्लासेंटेशन होगा, प्लासेंटेशन की वजह से एक स्पेशल टिश्यू जो कि डिस्क लाइक होगा वो बनेगा, और वो टिश्यू ये इंश्योर करेगा कि जो फीटस अंदर डेवलप कर रहा है यूट्रस में उसको लगातार नरिशमेंट मिलता रहे। और वो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? मदर के ब्लड से। सो मदर के ब्लड से उस न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करने का काम कहाँ? फीटस तक आपका कौन करेगा? प्लासेंटा करता रहेगा। ठीक है, तो प्लासेंटेशन भी हो गया। प्लासेंटेशन के बाद आपको मालूम ही है कि अंदर चूंकि बेबी डेवलप कर रहा है, तो अब बेटा क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। तो हमारा 6वां स्टेप है, सॉरी, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज नथिंग, सिंपली व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स आपने 11th में पढ़ी थी, कौन कौन सी? इक्टोडर्म जो कि आउटर मोस्ट होती है, उसके बाद क्या होती है बेटा? मेसोडर्म, और मेसोडर्म के बाद क्या होती है? इंडोडर्म। ये 3 लेयर्स होती हैं। अब ये 3 लेयर्स जब बन जाएंगी तो इन्हीं 3 लेयर से आपके अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे। तो अब तो स्पेस हमें दिख नहीं रहा है, कहीं हमको हटाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, और वो स्पेस बनाने के बाद फिर इवेंट्स को मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। ठीक है बेटा, तो आई हैव डन इट।
यहाँ से हटा दिया है मैंने। तो गैस्ट्रुलेशन आपने देख लिया। गैस्ट्रुलेशन के बाद होगा बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम अगेन। जेनेसिस मीन कुछ बन रहा है और ऑर्गेनो है तो ऑर्गन ही तो बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो तीनों आपकी जर्म लेयर्स हैं इनसे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ही तो आपकी बॉडी बनेगी। अब जब बॉडी बन गई बेटा तो उसके बाद में अगला स्टेप आपका होगा कौन सा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट, प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल्ली डेवलप्ड fetus, fully developed fetus from uterus। यानी अब जो किसी भी फीमेल की बॉडी में उसके यूट्रस में बेबी डेवलप कर रहा था वो पूरी तरह से डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद अब एक ऐसा प्रोसेस होगा जो उसकी बॉडी से उस फीटस को बाहर कर देगा। तो वही लिखा मैंने कि प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम मदर्स वूम्ब और यूट्रस, या आप इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग बेबी। यानी बेबी को डिलीवर करने का प्रोसेस ही क्या होता है बेटा, पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद 9th स्टेप में आपको देख लेना है लैक्टेशन। ठीक है, आपको मालूम है कि जब पार्चुरेशन हो जाता है तो जो बेबी है उसको फीड करने के लिए मिल्क की जरूरत होती है। तो गॉड ने बेटा नेचुरली व्यवस्था कर रखी है, वो मिल्क कौन प्रोवाइड करेगी, मदर। किस प्रोसेस से, लैक्टेशन से। तो ये क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ मिल्क। यानी एक ऐसा पीरियड जब मिल्क जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अलग अलग तरह के हार्मोन्स हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है और मिल्क रिलीजिंग हार्मोन की तरह भी काम करता है, लेकिन बनवाने में जो मिल्क को बनाना है उसमें प्रोलैक्टिन हेल्प करेगा, हम लेटर ऑन आपको बताएंगे। तो ये बेटा अभी तक जो आपने अपने बोर्ड पे देखे ये सभी थे इवेंट्स जो इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। और ध्यान दीजिए, अगर ये इवेंट समझ में आ गए ना तो कुछ पूरे चैप्टर में है ही नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। इन गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल फीमेल में अलग अलग बनेंगे। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस में होती है, स्पर्म बनता है। फीमेल में oogenesis, ओवरी में होती है, एग या ओवम बनता है। अब गैमेट जब बन जाएगा तो दूसरा स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट, उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। गैमेट का ट्रांसफर हो गया तो तीसरा होगा फर्टिलाइजेशन, जहां पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, जाइगोट बनेगा। ये पूरा प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा और इंटरनल होगा। ठीक है, इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, उसको डेवलप करना है बेटा। तो अगला स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। उसमें हम क्लीवेज वगैरह देखते हैं कि माइटोसिस, सेल डिवीजन से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 मतलब नंबर ऑफ सेल्स लगातार बढ़ती जाती हैं। फिर वो सेल्स डिफरेंशिएट होंगी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और फिर बॉडी लेटर ऑन बनेंगे। तो अगला स्टेप इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जो चौथा स्टेप हमने बताया यहाँ से देख सकते हैं इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन में बेटा जो जाइगोट बना था उसका डेवलपमेंट हुआ, अब वो जाके कहाँ, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूटेरस की इनर मोस्ट, उससे जाके अटैच हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट उसका वहीं पे होगा। इम्प्लांटेशन के बाद चूंकि वो इम्प्लांट हो गया है फीमेल्स की बॉडी में तो उसको नरिशमेंट भी चाहिए, किसको, फीटस को। तो फीटस जो डेवलप कर रहा है फीमेल्स की बॉडी के अंदर, उसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, जो कि डिस्क शेप होता है, अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से। तो वो हम लेटर ऑन आपको बताएंगे। ठीक, अगला है आपका गैस्ट्रुलेशन, जहाँ पे अलग अलग जर्म लेयर बनेंगी और वो अलग अलग जर्म लेयर ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस से अलग अलग ऑर्गन बनाएंगे। और फिर ऑर्गन जब बन जाएगा तो अब आपका जो फीटस अंदर डेवलप कर रहा था पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, बेबी हो चुका है। अगला प्रोसेस है उस बेबी को बाहर करने का, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन हो गया, बेबी बाहर आ गया तो उसको नरिशमेंट चाहिए और उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।